It's Kachinda to open the score. Spreading ahead. Slipped into the end zone by Jerome Simpson. Pick up. Have you ever seen a try like that? خیر مقدم کرتے ہیں آپ سب کا اس سپورٹس میگزین میں، ویکلی سپورٹس میگزین میں، جسے آپ دیکھتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پہ SHQ ریڈیو ایکٹیو پہ، اور اس کے بعد گلوبل نیوز نیٹ ورک پہ بھی آتا ہے۔ بات ہوتی ہے سپورٹس کی۔ آج بھی ہم فٹ بال کی بات کریں گے، کرکٹ کی بات کریں گے، یہاں کے گراؤنڈس کی بات کریں گے، آپ تک رپورٹس پہنچائیں گے، آپ کے جو نواز نامے ہیں، آپ کے جو سوالات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے، بلکہ ہمارے صاحب کے سامنے رکھیں گے، وہ جواب دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کوئز بھی ہوگا اور انعام بھی ہوگا آج کے پروگرام میں، جس طرح سے پچھلے پروگرام میں ہوا۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے پہلے ٹیسٹ میچ کی۔ پہلے پاکستان نے بہت اچھی بیٹنگ کی، اس کے بعد انگلینڈ نے جتنا ہم سوچ رہے تھے اتنی اچھی بیٹنگ نہیں کی۔ رشید صحیح کہا آپ نے کہ پہلی اننگ میں ٹھیک سکور کیا پاکستان نے، انگلینڈ نے نہیں کیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا میچ کا؟ آخر میں انگلینڈ میچ جیت گئی ہے، کیونکہ تیسری اننگ میں بارہا کہہ چکا ہوں بڑی اہم ہوتی ہے میچ میں، اور تیسری اننگ جو ہے اٹ میکس اور مارز اے میچ، اور ایسا ہی ہوا جو ہمیں دیکھا کہ پاکستان نے اسکور نہیں کیا تیسری اننگ میں، ٹارگٹ مل گیا اور اس وکٹ پہ اتنا چیزیبل بھی نہیں ملا، لیکن ووکس اور بٹلر نے جو بیٹنگ کی وہ بہت پازیٹیو تھی۔ ووکس نے پہلی اننگ میں پازیٹیو کھیلا، اور بٹلر نے پہلی مرتبہ ٹیسٹ میں ویسا کھیلا جیسا ان کو کھیلنا چاہیے۔ وہ اٹیکنگ بیٹسمین ہیں، آگے ڈیفینسو کرکٹ کھیلتے ہیں، رن نہیں بنا پاتے ہیں۔ 139 رن کی بے مثال پارٹنرشپ، خاص کر جس میں انہوں نے اپنے اوپر بھروسہ دکھایا اسٹروک پلے پہ۔ وہاں تھوڑی چوک بھی ہو گئی پاکستانی بالر سے کہ اور کیپٹن سے کہ ان کو ووکس کو دیکھا پہلی اننگ میں باؤنس کی تو سر پہ بال لگی، نہیں کھیل پائے، کسی نے باؤنسر ہی نہیں ماری آ کے، اور تھوڑی سی ان ایکسپیرئنس ان کے پیس اٹیک کی دکھ گئی وہاں، شاہین افریدی اور نسیم شاہ کی تجربے کی کمی دکھی وہاں، اور نتیجہ انگلینڈ کے حق میں رہا کیونکہ انہیں بہتر کھیلا۔ سم ٹوٹل میں وہ میچ لے کے بھاگ گئے اور کامیابی ان کے ہاتھ لگی۔ اب ایک اور چیز دیکھیں آپ، اب ساری باتیں ہوں گی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ کیا دو لیگ اسپنر کو کوئی کیپٹن ٹیم میں ہینڈل کر سکتا ہے؟ دو لیگ اسپنر آپ کھیل رہے ہیں تو شاید آپ کو تو بالنگ ملی نہیں، بھروسہ کیپٹن نے دکھایا نہیں ان پہ، پھر جب لائے تو پتہ ہے بھروسہ اس پہ ہے نہیں تو وہ ڈلیور نہیں کر پائے گا۔ پھر کچھ کہیں گے دو لیگ اسپنر لے کے میدان میں گئے، اٹیکنگ موو ہے، لیکن یہ بھی محسوس ہے ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی فریجائل بیٹنگ لائن اپ ہے، آپ نے ایک بیٹسمین شاٹ کر دیا اور اس بالر سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا جس کو آپ نے ایکسٹرا کھلایا، تو یہ بیک فائر ہو گیا موو آپ کا، سیدھی بات ہے۔ اور چوتھی اننگ میں انگلینڈ کو بیٹنگ کرائی لیکن دونوں اسپنر یوز نہیں ہوئے ٹھیک طرح جیسے ہونے چاہیے۔ پھر پاکستان کی بیٹنگ ہم نے دیکھا کہ کافی فریجائل ہے، اور اس میں دو پلر ہیں اسد شفیق اور اظہر علی، وہ رن نہیں بنا رہے ہیں، اور شفیق رن آؤٹ ہو گئے، وہ بھی فرق پڑا، اور لگاتار LBW ہو رہی ہیں اظہر علی، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب مائنس پوائنٹ اگر ہیں تو پلس پوائنٹس بھی ہیں پاکستان کی ٹیم میں۔ نسیم شاہ نے ریزنیبل بالنگ کی، شاہین افریدی نے ٹھیک کی، اور اس کے بعد جو بیٹنگ کی شروع میں شان مسعود نے بہت اچھی بیٹنگ کی۔ اگر انگلینڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں جو فائٹ بیک ہے وہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے ان کا، اور ان کے کیپٹن کو بھی اسپنر ہینڈل کرنا نہیں آتا ہے، وہ بیسٹ کو تب بالنگ دیتے ہیں جب کسی کو بالنگ دینے کی ضرورت نہ پڑے، تو تھک گئے ہوں، ان کو نہیں پتہ اسپنر کو کیسے استعمال کریں۔ بدقسمت ہے بیسٹ کے روٹ کے انڈر کھیل رہے ہیں، یہ ایشو بنتا ہے ان کا، اور ان کی بیٹنگ میں بھی ایشوز برابر ہیں جو کسی حد تک پاکستان نے ایکسپلائٹ کیے اور اینڈ پہ ایکسپلائٹ نہیں ہو پائے۔ اور براڈ کی جو پھر یہ واپسی ہوئی ہے پہلے ٹیسٹ میں نہیں ہونے کے بعد ویسٹ انڈیز کے، وہ امیزنگ ہے جو بالنگ کر رہے ہیں، اور اب رن بھی بنا رہے ہیں آف لیٹ، پہلے ڈرنے لگے تھے فاسٹ بالنگ سے۔ تو اگلا ٹیسٹ 13 کو ہے، پھر اوپن ہے ٹیسٹ، لیکن نیچرلی جب اسکور پہ 117 پہ 5 آؤٹ کر کے نہیں جیت پایا پاکستان، تو انگلینڈ ہیز اپر ہینڈ، دے ہیو ایج، اور دے ہیو نتھنگ ٹو لوز ناؤ۔ اب وہ تھوڑا فریلی کھیل سکتے ہیں کیونکہ 1-0 کی لیڈ ہے ان کے پاس۔ اور رشید آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ پچھلے پروگرام کے بارے میں لوگوں نے کئی خطوط لکھے تھے میں نے، اور کئی میلز بھیجی تھی، ان کی بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں ہم مختلف سیگمنٹس پیش کرتے ہیں، پچھلی بار ہم نے روپ صاحب کا جو سیگمنٹ پیش کیا،
ان کے جنم دن کے حوالے سے ہم نے سریندر کھنہ صاحب سے بات کی تھی, سید پرویز قیصر کے ساتھ بات کی, لوگوں نے بہت سراہا اس کو. بہت زیادہ بات ہوئی, بہت تعریف ہوئی, اور پرویز نے ہمیں ایک میل بھی کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ محی الدین مرزا صاحب کے ساتھ ایسا ہی سیگمنٹ ہو ان کی لائف کے بارے میں. تھوڑی میں نے انیشیٹ کیا معاملہ ہے, دیکھیے کسی نہ کسی طرح ہم کسی نتیجے پہ وہاں بھی پہنچیں گے. اور اگلے بھی پروگرام میں ایک اور سرپرائز ہوگا آپ کے لیے, ایک اور خاص چیز ہوگی کرکٹ کی J&K کے. تو فی الحال ہم چلتے ہیں کھیل خبروں کے لیے گلزار کے پاس. کھیل کے میدان سے میں کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں گلزار. پاکستان اور انگلینڈ کے مابین 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز جاری. پہلا ٹیسٹ میچ سنسنی خیز مقابلے کے بعد اختتام. انگلینڈ نے 3 وکٹ سے پاکستان کو ہرایا. فائنل سکور پاکستان 326 اور 169, انگلینڈ 219 اور 7 وکٹ پر 277. پاکستان کے شان مسعود نے پہلی اننگ میں سینچری بنا کر پاکستان کا سکور 326 تک پہنچانے میں کلیدی رول ادا کیا. 24 سال کے وقفے کے بعد سعید انور کے بعد وہ دوسرے سلامی بلے باز بنے جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف سینچری سکور کی. شان مسعود مدثر نظر کے بعد دوسرے پاکستانی کھلاڑی بنے جنہوں نے اپنے 3 مسلسل ٹیسٹ میں سینچریاں سکور کی. چائنیز کمپنی ویوو نے IPL 2020 کے اسپانسرشپ واپس لینے کا فیصلہ کیا. واضح رہے, ویوو کمپنی سالانہ 440 کروڑ روپے BCCI کو اسپانسرشپ کے طور پر ادا کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا IPL 2020 ابوظہبی, دبئی اور شارجہ میں 19 ستمبر سے کھیلا جائے گا. اکتوبر میں منعقد ہونے والی ویسٹ انڈیز آسٹریلیا T20 سیریز کو مؤخر کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ اس دوران دونوں ممالک کے زیادہ تر کھلاڑی IPL کے ساتھ منسلک رہیں گے. ادھر سپتمبر اکتوبر میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان T20 اور یک روزہ میچوں کی سیریز بھی IPL کی وجہ سے جنوری 2021 تک ملتوی کرنے کا فیصلہ لیا گیا. خواتین کا عالمی کپ 2022 تک ملتوی کرنے کا فیصلہ لیا گیا. بھارت 2021 کا T20 عالمی کپ اور 2023 کے 50 اوورز ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہا ہے. آسٹریلیا میں 2022 کا T20 عالمی کپ منعقد کیا جا رہا ہے. اس بات کا فیصلہ جمعہ کے دن ICC کی طرف سے آیا. 18 اگست سے ٹرینیڈاڈ اور ٹباگو میں CPL یعنی کیریبین پریمیئر لیگ کا آغاز ہو رہا ہے. تلنگانہ حکومت کی طرف سے کلیئرنس ملنے کے بعد نیشنل بیڈمنٹن کیمپ حیدرآباد میں شروع ہو رہا ہے جس میں بھارت کے چوٹی کے کھلاڑی PV سندھو, سائنا نہوال, کدمبی سری کانت, اشونی پونپا, سائی پرینیت کے علاوہ چراغ سیٹھی بھی شامل ہو رہے ہیں. ان کھلاڑیوں نے پولیلا گوپی چند بیڈمنٹن اکیڈمی میں ٹریننگ کی شروعات کی. ادھر میزورم کے کھلاڑی بھی گوپی چند اکیڈمی سے آن لائن ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. 2019 کی ہائیسٹ پیڈ فیمیل ایتھلیٹس کی لسٹ میں بھارت کی PV سندھو 13ویں نمبر پر رہی. اگلے مہینے بھارت میں ہاکی کے نیشنل کیمپس بھی کووڈ-19 کے پروٹوکال کے تحت شروع ہو رہے ہیں. ادھر بھارتیہ ہاکی ٹیم کے کیپٹن منپریت کور سمیت 5 کھلاڑی کووڈ-19 پازیٹیو قرار دیے گئے ہیں. میلبرن میں کووڈ-19 کیسز میں اضافے کے پیش نظر نیو ساؤتھ ویلز نے گرینڈ سلیم ٹینس ٹورنامنٹ آسٹریلین اوپن کو میلبرن سے نیو ساؤتھ ویلز منتقل کرنے کی پیشکش ظاہر کی ہے. واضح رہے 1972 سے لگاتار یہ ٹورنامنٹ میلبرن میں منعقد کیا جاتا ہے. ادھر ڈیفینڈنگ چیمپئن رافائل نڈال نے اس سال US اوپن میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے. نڈال کے علاوہ دنیا کے ٹاپ 10 کھلاڑی بھی US اوپن اس سال نہیں کھیل رہے ہیں جن میں ایلینا سویٹلینا, کیکی برٹنز, ایشلی باٹے اور باقی دگج کھلاڑی بھی شامل ہیں. اینڈی مرے اور الیگزینڈر زویرو کوارنٹائن سہولیات سے مطمئن ہو کر ہی US اوپن میں شرکت کرنے کا فیصلہ لیں گے. اسپین کے ورلڈ کپ وننگ کیپٹن اور گول کیپر آئیکر کیسیلاس نے فٹ بال کی دنیا کو خیرباد کہا.
39 साला आयकर ने अपने 22 साला करियर में स्पेन के लिए फीफा वर्ल्ड कप और कई यूरोपियन टूर्नामेंट्स में स्पेन की जीत में कलीदी रोल अदा किया। वो रियल मैड्रिड के भी कैप्टन रह चुके हैं। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे खेल खबरों के साथ। खेल खबरें गुलजार पेश कर रहे थे और फिर से मैं टेस्ट की बात करूंगा। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में जब खेलना शुरू किया तो किसी बैट्समैन ने कुछ नहीं किया। शान मसूद डाउन द लेग साइड कैच हो गए। जी। उसके बाद गाड़ी चल पड़ी और आउट होते गए। एक पार्टनरशिप थोड़ी सी हुई थी बीच में, इसकी क्या नाम है, रिजवान की और असद शफीक की, और रिजवान है और उनमें तालमेल में गड़बड़ी, रन आउट हो गया असद शफीक। फिर एंड पे सिर्फ 33 रन जो यासिर शाह ने बनाए वही इंपॉर्टेंट हुए। और इसमें एक और ख़ास बात है, बड़ी नोटिसेबल है जी कि पिछले 1-1.5 साल में अजहर अली ने 1 सेंचुरी बनाई है कोई, और उनकी अभी भी टेस्ट एवरेज 46 है। उनने उससे पहले कितना अच्छा स्कोर किया है, लेकिन वो तकरीबन हर दूसरी से भी कुछ ज़्यादा ही इनिंग में एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं। तकरीबन हर इनिंग में एलबीडब्ल्यू हो रहे हैं पिछले 1 साल से जी। तो जो भी बैटिंग कोच पहले था या जो यूनुस खान आज हैं, इनको ये बात सोचनी होगी और इन्हें पहले भी देखना था। इससे पहले जो कोच थे उनने भी देखना था नहीं इशू क्या है। इनकी टांग निकलती है हाफ टांग हर बॉल पे जी। और बैट कहीं नहीं होता है, बॉल कहीं भी हो वो निकल जाती है टांग, और उसके बाद इनको पता नहीं होता अंदर आने वाली बॉल मेरे साथ क्या करेगी। और वो टॉप बैट्समैन है इनके, बाबर आजम है अच्छे प्लेयर, लेकिन वो प्रूवन खिलाड़ी है जो 5000 रन के करीब है। बिल्कुल सही। आते हैं सवालात की जानिब। बहुत सारे सवाल आज भी दोस्तों ने पूछे हैं। ये पहला सवाल जो यूट्यूब पे पूछा गया था, तारिक मागरे ने गुसु पुलवामा से पूछा है, बल्कि इन्होंने लिखा है कि हमारे यहाँ एक मैच हुआ था जी, तो शिन गार्ड पहन के थर्ड मैन पे फील्डर फील्डिंग कर रहा था ट्राउजर्स के अंदर जी, ट्राउजर्स के अंदर। बैटिंग साइड ने एतराज़ किया, उन्होंने अंपायर से कहा तो अंपायर ने बैटिंग साइड के हक में 5 रन दे दिए, लेकिन बैटिंग साइड ने फिर भी नहीं माना, उसके बाद वॉकआउट कर गए। माजरा क्या है? माजरा ये है कि फील्डिंग साइड भी गलत है, ये बैटिंग साइड भी गलत है, अंपायर भी गलत है। अगर उसने शिन गार्ड पहने हैं अपनी पतलून के अंदर, नुकसान उसका है, वो दौड़ नहीं पाएगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? कोई इशू ही नहीं है। 5 रन ये नया रूल निकाला है, मैं इस अंपायर को देखना चाहूंगा 5 रन कैसे इसने काटे हैं और उनको दे दिए बैटिंग साइड को। और शायद जो बैटिंग साइड था वो हारने वाला होता है मैच, पोजीशन खराब होता है। ये तो गांव का तरीका है और यहाँ देहात में ऐसा होता है, उनको बुरा ना लगे। क्रिकेट में ऐसा ही होता है, जो टीम हारने लगी वो फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है, तो उन्हें कहा मैच ही नहीं खेलेंगे, थ्रो दैट टीम आउट सिंपली। सयार मल्ला शोपियान से पूछते हैं कि मिसबाउल हक कैसे कोच हैं? अभी साबित नहीं हुए कैसे हैं कोच वो, क्योंकि पहले बहुत हेस्टी डिसीजन लिए, एक मैच में एक प्लेयर, दूसरे में तीसरा प्लेयर, इसमें वो इसको इंट्रोड्यूस उसको आउट। तो अब थोड़े इंग्लैंड में उससे ज़्यादा सेटल दिख रहे हैं। वो एज कैप्टन बहुत डिफेंसिव थे, ये थे कि बड़े डिटरमिन्ड थे मगर डिफेंसिव थे। जी। लेकिन आज के क्रिकेट में डिफेंसिव अप्रोच सही नहीं होता है। लेकिन क्या पता है कि उनने पाकिस्तान टीम को बहरान से निकाला जब वो कैप्टन थे। जी। मैच फिक्सिंग, प्लेयर जेल, बाकी किससे कोई नहीं निकाल सकता था। सही बात। उन हालात में जो मिसबा ने निकाला है, क्या पता यहाँ भी कुछ करेंगे। और एक इसी तरह से यूट्यूब चैनल पे पूछा है मलिक अय्याज ने, आपने जगह का नाम नहीं लिखा, आपने कहा कि कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह और ऐसे बड़े खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? पहली बात ये कि इंडिया बहुत क्रिकेट खेलता है, और दूसरी बात ये कि अब ये मान ही लिया है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बोर्ड भी कहता है मत खेलो, थक जाओगे, क्योंकि तुम्हें आईपीएल में पैसा कमाना है, फिर तुम्हें बाकी मैचेस खेलने हैं, और इंडिया बहुत मैच खेलता है इसलिए। लेकिन ये बहुत गलत है, क्योंकि जब बुमराह बॉलिंग करेंगे अभी भी लोकल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो प्लेयर को संभल के खेलना होगा, वो कुछ और सीखेगा। जब कोहली को आप बॉलिंग करेंगे तो आपको बॉलिंग में कुछ और डेवलप करना होगा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आप जब पहुंचेंगे काम आएगा, लेकिन वो मौका ही नहीं मिलता है। आते हैं अब वादी की जानिब और बात करें रहबरे खेल की। एक वक्त ऐसा आ गया कि जब सरकार ने कहा कि रहबरे खेल इस जुमरे में बहुत सारे लोगों को फिट किया जाएगा, खासकर उनको जिनका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, जिनका खासकर बीपीएड एमपीएड है। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तालीम याफ्ता हैं, बराबर सारी क्वालिफिकेशन, लेकिन फिर भी हमें अभी तक नहीं ले रहे हैं। ये एक मामला है कि लोग कह रहे हैं कि हमें लिया जाए, और प्रोटेस्ट चल रही है, या पूछ रहे हैं कि क्या बात हुआ, आपने कहा था, फिर ये सिलसिला रुक गया, कुछ इलाकों में हुआ, कुछ में नहीं हुआ। ये और तसद्दुक की रिपोर्ट है इसी हवाले से।
अस्सलामुअलैकुम। रहबरी खेल अनएम्प्लॉयड जो कैंडिडेट्स है सेकंड फेज़ के तहत जिनको सरकार को एम्प्लॉय करना था यानी नौकरी पे लगाना था, बहरहाल ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आज भी ज़िला अनंतनाग के बेशतर इलाकों में रहबरी खेल जो ये सारे अशखास है ये सड़कों पे निकलते हैं और एहतजाज करते हैं, बल्कि सरकार से मुतालबा करते हैं कि इनको फौरी तौर सेकंड फेज़ के तहत एब्जॉर्ब किया जाए। पहले फेज़ के तहत तकरीबन 3000 जो है वो एब्जॉर्ब किए गए थे, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बात करेंगे इनके साथ। वाराज क्या मसला जी, बताइए क्या मसला? जी, मेरा नाम अब्दुर्रऊफ शाहीन है, मैं जम्मू एंड कश्मीर फिजिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। बताइए मसला क्या है? जी, हमारा मसला ये है कि 2017 में बीजेपी और पीडीपी कोalition गवर्नमेंट ने हमसे ये वादा किया था कि आपके हम जम्मू एंड कश्मीर में 7411 पोस्ट निकालेंगे। उसमें से उन्हें खाली 3000 पोस्ट फुल किए हैं। उनका उस वक्त बजट का मसला था, तो लिहाजा उन्होंने कहा था कि हम इसको 2 फेज़ों में निकालेंगे। तब से आज तक पूरे 3 साल होने को, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया। हम इस बारे में फारूक अहमद खान एडवाइजर खान साहब से भी मिले हैं। आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि इस रहबरी खेल का जो सेकंड फेज पेंडिंग पोस्ट है, कितने उम्मीदवार आप होंगे? हम लगभग 4311 उम्मीदवार बाकी है जो अभी आपको अभी नहीं लगाया? जी, अभी भी नहीं। आपके साथ नाइंसाफी है? हाँ, मेरे से नाइंसाफी हो रही है। जी, आपका नाम? सब्जार अहमद लोन सर। बताइए सब्जार, क्या मसला है? सर, हमारा मसला ये है, गवर्नमेंट ने हमारे सर कमिटमेंट की थे जब उन्होंने पहला फेज़ निकाला है, फिर सेकंड फेज़ के लिए उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है। तब से 3 महीने गुजर चुके हैं, अभी सेकंड फेज़ की तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट टास्क से मासी नहीं हो रही है। क्या आप खाली मेल एस्पिरेंट्स हो कि फीमेल्स भी आपके साथ? सर, हम बोथ है, मेल एंड फीमेल आल्सो सर। जी जी जी। अभी आपको नहीं लगाया है? सर, अभी हमें नहीं लगा रहे हैं। किसी से आप मिले थे? सर, हम बोर्ड गवर्नर साहब से भी मिले हैं, फारूक खान साहब से मिले हैं, जो हेड अथॉरिटी हैं उनके साथ हम सब तो कुछ नहीं हो रहा है? सर, अभी तक कुछ। जी, बताइए। जी, मेरा नाम शौकत अहमद भट्ट है। सर, जिस तरह से हमारे सेक्रेटरी साहब रूफ साहब ने बेहतरीन अंदाज में बात की है, तो इसमें जो मेन मसला है सर, इसमें ओवरेज का मसला है सर। पिछले 6 महीने में हमारा तकरीबन 800-900 के करीब जो बच्चे हैं वो ओवरेज हो चुके हैं सर। अभी जो बच्चे हैं तकरीबन 600-700 के करीब जो बच्चे हैं वो ओवरेज के बिल्कुल करीब है सर। तो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, जो ये हमारा मसला है, जो लीगल मसला है सर, जो हमारा लीगल मसला है, जो हमारे लीगल प्रोसेस पेंडिंग है, इसको जल्द से जल्द मतलब एब्जॉर्ब किया जाए लड़के, ताकि अपना फ्यूचर संभाल सके। ओके सर। बहरहाल नाज़रीन, ये थे जो हमारे रहबरी खेल यानी ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने रहबरी खेल जो ट्रेनिंग की है फिज़िकल एजुकेशन में, मुख्तलिफ डिग्रियाँ हैं, और फिर सरकार ने इनके साथ वादा किया था पहले फेज़ के तहत 3000 एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन बाकी जो रह गए तकरीबन इनके मुताबिक 6000 अभी भी बाकी है। लेकिन सरकार के पास पोस्ट्स है, लेकिन सरकार अगर मुतवज्जा आज नहीं होगी तो मुझे लगता है बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो ओवरेज भी होंगे और इनके साथ ज़्यादती होगी, नाइंसाफ़ी होगी। उम्मीद यही करते हैं कि इनको फौरी तौर सरकार के जो अरबाब इख्तिदार है वो फौरी तौर मुतवज्जा होंगे, ताकि इन रहबरी खेल ये जो एस्पिरेंट्स है इनको बाकायदा एब्जॉर्ब किया जाए। अपने साथी आसिफ शफी के साथ लिए चलते हैं वापस। खुदा हाफिज़। ये उन दोस्तों की फरियाद है जो चाहते हैं कि हमें लिया जाए रहबरी खेल के लिए। अब उन दोस्तों का अहवाल जो लिए गए हैं उनकी क्या सूरत हाल है, चलते हैं फयाज सूफी के पास। आपका मेज़बान फयाज सूफी बांडीपुर से। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे रहबरी खेल जो असातिज़ा है, जो लगे हैं, इनकी मुश्किलात की आज इनके साथ बात होगी। हमारे साथ मौजूद है रहबरी खेल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर जान है जी। मैंने फिजिकल एजुकेशन में PhD नेशनल जे रखी है जी। जो सैलरी रखी गई है सर वो 3000 रखी गई है। आज कल आप समझ सकते हैं सर कि 3000 में गुजारा नहीं हो सकता है। अपनी फैमिली को फीड कैसे हम करें इन 3000 में। और दूसरी बात है सर, हमारी जो पॉलिसी है उन्होंने रखा है कि 7 साल के बाद हम परमिट हो जाएंगे। अच्छा, 7 साल तक हमें कोई सर्विस बेनिफिट नहीं मिलेगा। ना ही हम सर फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, ना ही कोई मैटरनिटी लीव का सिस्टम रखा गया है। सर्विस बुक वगैरह बना है? कुछ भी नहीं है सर, इसमें कुछ इन्होंने कोई प्रोविजन नहीं रखा है। सिर्फ एक क्लास रखा है, क्लास नंबर 16 है हमारी पॉलिसी में सर।
उसने ये रखा है कि हम इस पॉलिसी को कभी भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन 2 साल होने के बावजूद अभी कोई अमेंडमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। मैं जोन कोयल मुकाम से हूँ। अच्छा, तो मेरे यही मसला है कि जो हमारा 3000 का सैलरी रखा गया है गवर्नमेंट ने हमारे साथ 3000, तो उसमें हमारा 100 रुपये दिन का बनता है। तो आप ही समझ सकते हैं 100 रुपये में क्या हमारे जो टीचर्स आते जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हैं अभी, तो अगर आप देखेंगे आज बच्चे का कम से कम 50 रुपये दिन में खर्चा बन जाता है, तो उसके हिसाब से 100 रुपये में हमारे बहुत सारी मुश्किल। ये 7 साल हमारे वो रिड्यूस किया जाए 5 और 2 साल के बाद हमारा जो 4000 सैलरी रखा गया है उसे भी थोड़ी सैलरी मतलब कम से कम लेबर के हिसाब से वहाँ भी 400 रुपये दिन में बनता है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं नाइंसाफ़ी। और जो 3000 सैलरी मिल रही है उसमें हमें अपना जो फेयर है वो भी इसी में काटना पड़ता है, सब कुछ अपनी फैमिली को भी चलाना पड़ता है। पेज एक्ट जो है सर, जो लेबर का बनता है 350 रुपये 400 रुपये, वो भी हम पर लागू नहीं है सर। हमारी जो सैलरी है हम पर डे 100 रुपये लेते हैं सर। आप समझ सकते हैं कि 100 रुपये में हमारा क्या, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ा है सर। इससे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 35,000 ले रहा था वहाँ से सैलरी। इवन कि मेरे JRF की 40,000 वो भी वेस्ट हो रहे हैं सर, क्योंकि इसमें उन्होंने प्रोविजन रखा है कि फर्दर स्टडीज के लिए नहीं जा सकते हैं। हम तोड़ के हैं 3000 में। अब तो ये 3000 हमारे लिए सब कुछ है। हमने गवर्नमेंट बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनसे हम मिले हैं, जैसे कि हमारे एडवाइजर साहब हैं उससे भी हम मिले हैं। हमने हर एक से ये बात उठाई है। क्या क्या काम लिया जाता है आपसे स्कूल में? सर हमारा मतलब एक तो फिजिकल एजुकेशन के सारे काम लिए जाते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन टीचर के काम होते हैं। उसके अलावा जो भी काम होते हैं हम करते हैं सर, जैसे डिसिप्लिन का होता है, बाकी चीज़ों का होता है। इवन कि हम स्कूल में पढ़ाते भी है। मैं अपनी जिस स्कूल में मैं हूँ सर, मैं वहाँ 8th को भी पढ़ाता हूँ, 7th को भी पढ़ाता हूँ, 6th को भी पढ़ाता हूँ। वो भी हम करते हैं, साथ साथ इनको मतलब ये जो हमारे डिपार्टमेंट के अंडर आता है वो काम भी करते हैं। ये रहबरी खेल जो असातिज़ा है इनकी डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा करें। बांडीपोरा से खेल के मैदान से के लिए आप वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से इस वक्त देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल मरहले में पहुंच गई। सही बात है। देखो रशीद, जिसको दुनिया का सबसे डिफिकल्ट और सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है जी, और ये है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कहेंगे कि साउथ अमेरिका में भी फुटबॉल अच्छी है, अफ्रीका में भी है, तो यूरोप का क्यों? क्योंकि वहाँ के सारे टॉप प्लेयर तो यही हैं। सही, वो तो यूरोप में खेल रहे हैं। सही, तो इसलिए मानते हैं इसको। इसमें पहले शौक लगा शुरू में ही कि डिफेंडिंग चैंपियन शुरू में लिवरपूल बाहर हो गया। अब देखते देखते 2 दिन में यूवेंटस बाहर हो गया, रियल मैड्रिड बाहर हो गया, और बड़ी टीमें बाहर हो रही हैं इसमें। और बड़ा ओपन हो रहा है टूर्नामेंट कि कौन जीतेगा, क्या होगा। अब हम कहते हैं कि इस पे लोग कहते हैं कि अगर वो टॉप टीम्स नहीं आएंगी तो क्या क्राउड पे असर पड़ेगा? क्राउड तो है ही नहीं क्राउड पे। और इस लेवल की फुटबॉल पे यूरोप में कभी क्राउड पे असर नहीं पड़ा। कोई भी यूरोपियन चैंपियंस लीग का मैच हो तो हाउसफुल ही होना होता था। लेकिन आज ये कमाल है कि ये कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि इन प्लेयरों को आदत है कि चारों तरफ शोर, इनको शोर में एक साइड से इनके सपोर्टर, दूसरी साइड से इनको पुश कर रहे हैं, उसमें इनको जोश आ रहा है। ये खाली स्टेडियम वाले नहीं है हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स की तरह। इनको आदत है। हाँ, इनको, और इनके पीछे एक दुनिया दीवानी है जो क्रिकेट वाला कभी ड्रीम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और अब आते हैं फिर से सवालात की जानिब। पिछले हफ्ते कुछ सवालात रह गए थे, उसमें से एक सवाल मैं पढ़ूंगा। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर मैं अपने तमाम दोस्तों से ये अर्ज करूँ कि आप 2-3 सवाल पूछते हैं, हम एक ही वो ले लेते हैं, एक ही सवाल लिखा कीजिए। शकील रमज़ान हरदुचनम रफ़ियाबाद से कई सवाल लिखे हैं, लेकिन एक सवाल मैं पढ़ूंगा कि यहाँ हमारी वादी में या पूरे जम्मू कश्मीर में जो दूसरे खेल हैं, मिसाल के तौर पर बेसबॉल है, रग्बी है, टेनिस है, उसकी तरफ कम तवज्जो क्यों दी जाती है? देखिए, तवज्जो का मामला थोड़ा इससे जितना आप समझ रहे हैं उससे थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ बहुत लोग कहते हैं लोग क्रिकेट ही क्यों खेलेंगे? अगर बच्चा खेलना चाहता है आप क्या करेंगे? मुझे बताइए ना। सही। आप बताइए कि जब आप जर्मनी जाते हैं तो वहाँ फुटबॉल ही क्यों खेलना चाहता है? हकीकत ये है ना, वो क्यों नहीं कहता है कि मैं रग्बी खेलूंगा? नहीं खेलता है, रेयरली खेलता है जी। तो हमारे यहाँ लोगों की फेवरेट गेम है क्रिकेट, तो खेलेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बाकी खेलों में जिनकी दिलचस्पी उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। अब उसमें यह हुआ है कि जैसे आपने बेसबॉल की बात की, रग्बी की, कि कहीं कहीं इसमें कुछ काम अच्छा भी हुआ है, लेकिन ये इंडिविजुअल्स ने एसोसिएशन बना के हाईजैक कर ली है जी जी, और उनकी मर्जी की टीमें बनती हैं और जाती हैं, और वही कुछ गोल मोल मटोल टूर्नामेंट खिलाते थे पहले भी, ऐसे वैसे लपेट के यहाँ से 4 टीमें लाई, वहाँ से वो टूर्नामेंट लगता भी नहीं था, मगर इशू हो गया कि टूर्नामेंट हो गया, एसोसिएशन जिंदा रही। तो इसलिए गेम तो प्रमोट नहीं होगी। गेम प्रमोट होगी स्कूल में, गेम प्रमोट होगी कॉलेज में, जहाँ स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट डेड है।
اور سوال لکھ بھیجا ہے واجد گلزار نے بانڈی پورہ سے، پچھلے ہفتے بھی لکھا تھا، ہم اس وقت نہیں پڑھ پائے کیونکہ بہت سارے سوالات ہم نے پڑھے، اب اس بار بھی لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ یوراج سنگھ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کرکٹ بورڈ نے میرے کریئر کے آخری دنوں میں میرے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا. اور آگے یہ لکھتے ہیں کہ ایسا بھارت اور پاکستان میں ہی کیوں ہوتا ہے، کون ذمہ دار ہے؟ کیا بورڈ؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ بے حد اچھی سوتیلی ماں ہوگی بی سی سی آئی یوراج سنگھ کی. جی. جب یہ ختم ہو گئے تھے تب بھی ان کو واپس لاتے رہے وہ کھیلنے کے لائق بھی نہیں تھے تب بھی واپس لاتے رہے اور یہ فیل ہوتے رہے. تب ان کو خود سمجھ آنا چاہیے تھا. ان کا ایسا سلوک ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، اس خطے میں ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ بالکل ناکارہ ہو گئے، آپ چھوڑنا نہیں مانتے جو آپ کے ساتھ ہوا. یہ بھی اسی خطے میں ہوتا ہے. اور آپ ساتھ میں لکھتے ہیں کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ مصباح الحق اور یونس رول ماڈل ہونے چاہیے برصغیر میں؟ جب انہیں اس باغ و بہار جب ان کا تھا تب انہوں نے ریٹائرمنٹ. بالکل ٹاپ فارم میں ریٹائر کیا انہوں نے اور اچھا کھیل رہے تھے. وہ 299 بنائے لاسٹ سیریز میں مصباح نے. ایک بات یہ ہے گواسکر نے بھی ایسا ہی کیا، ٹاپ فارم میں چھوڑ دیا کرکٹ. سری ناتھ نے ٹاپ فارم میں کرکٹ چھوڑ دی. ڈراوڈ بھی کوئی اتنے فیل نہیں ہوئے تھے، کمبلے بھی کوئی اتنے زیادہ فیل نہیں ہوئے تھے جن نے کرکٹ چھوڑ دی. لیکن کچھ تھے وہ جن کو زبردستی نکالا گیا، اور کچھ ہوئے ہیں 20 سال پہلے باہر ابھی ریٹائر نہیں ہوئے. لطیف احمد بیگ نے سوال لکھا ہے تکیہ خان محمد سوپور سے. لکھتا ہے کہ میرا بیٹا تیسری جماعت میں پڑھتا ہے، اس میں بیٹنگ کا نیچرل ٹیلنٹ ہے. بدقسمتی سے یہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے جہاں میں اس کو بھیجوں گا. مہربانی کر کے مجھے کوئی ایسا ویڈیو بتائیے جس میں وہ فارورڈ، ڈیفینس اور باقی جو ڈرائیو ہیں، مختلف ڈرائیو، کور ڈرائیو وغیرہ سیکھ سکے. دیکھیے آپ کا بچہ 9 سال کا ہوگا یا 8 سال کا ہوگا، اچھی بات ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں نیچرل ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ دیکھنا اس کو ہے اس میں کیا ٹیلنٹ ہے جو یہ کھیل اچھی طرح پرکھ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے وہ ٹیسٹ پلیئر اور رانجی پلیئر ہو، بالکل ضروری نہیں ہے. اس کی نظر ہو، پوٹینشیل دیکھنے کا، اور بندے میں ہے پاور کہ اچھا کھیلے گا. چھوٹا ہے، آگے امپروو کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج سے ہی ٹیسٹ پلیئر ہوگا. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس میں کھیل دکھتا ہے اور اس کو دلچسپی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس میں دکھتا ہے کچھ اور اس کو دلچسپی نہیں ہے، ڈونٹ فورس ہم. ایک اور بات. اور ایک بات یہ ہے کہ میں آپ کو سوئمنگ کے کتنے ویڈیو دکھاؤں، آپ سوئمر نہیں بنیں گے. آپ تیرنا پانی میں ڈالیں گے تو ڈوب جائیں گے. اس لیے وہ ویڈیو کتنے بھی دیکھ لے، جب وہ کسی لیول پہ کچھ سیکھے گا اور سمجھے گا تو وہ ویڈیو سمجھے گا. آج وہ ویڈیو نہیں سمجھے گا، اس کو پریکٹیکل ٹریننگ چاہیے. کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ یہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے؟ دیکھیے یہاں کچھ لوگوں نے کہا ہم کھولیں گے، لیکن یہاں اکیڈمی کلچر بھی الٹا ہی ہے. یہاں صبح شام پریکٹس کرانے کو اکیڈمی کہتے ہیں. نہ آپ کے پاس وہاں فٹنس ایکسپرٹ ہے، نہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہے، نہ ڈائٹ ایکسپرٹ ہے، نہ سائیکالوجسٹ ہے، نہ اینالسٹ ہے، نہ کچھ ہے. آپ نے اکیڈمی کھول دی، صبح فٹ بال کو 4 ککیں ماری، ہمارے پاس اکیڈمی ہے. تو اس میں یا تو آپ کے آس پاس پلیئر ہوں گے، یا ریٹائرڈ بھی ہو سکتے ہیں، آج کے بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پاس کیلیبر ہے، جن کے پاس پیشنس ہے اور میچورٹی ہے کسی کو گائیڈ کرنے کی، ان کے پاس چاہیے. اور یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو ان دوستوں تک پہنچائیں گے کہ جب ہم نے بات کی تھی سعید کرمانی کے ساتھ، ان کے یہاں زبردست اکیڈمی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی اکیڈمی میں بچوں کے ماں باپ کو بھی ٹرین کرتے ہیں. ہاں لاتے ہیں، 1 مہینے میں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جو بچہ کرکٹ پلیئر بننا چاہتا ہے اس کے ساتھ تم کیسا سلوک کرو گے اور بہیو کرو گے. دیکھیے کیا اکیڈمی ہوگی، کس لیول پہ پہنچے. ایک سوال پڑھیں گے، اس کے بعد ہم ایک اور سیگمنٹ کی جانب جائیں گے. دانش آفاقی لکھتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بابر اعظم اس خطرناک بولنگ لائن اپ کو آسانی سے کھیل کر اپنی عظمت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ بابر کو ایک موقع مل رہا ہے کہ اگر انہوں نے آنے والے یعنی ان 3 ٹیسٹس میں 450 رنز بنائے تو وہ دنیا کے نمبر 1 بلے باز بن جائیں گے؟ دیکھیے میں 1 اور 2 کی بات نہیں کروں گا، مگر بابر اعظم اچھے پلیئر ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پہلی اننگ میں بہت فلوئنٹ اور اچھا کھیلا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دوسری اننگ میں کہاں لے آئے ان کو واپس. تو ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ جملہ بازی پالیٹکس میں ہی چلتی ہے، کھیل میں نہیں چلتی ہے. بڑا لیولر ہوتا ہے. ہاں وہ بہت اچھے بیٹس مین ہیں، گریٹ نہیں ہیں، جا رہے ہیں گریٹنس کی طرف، بن سکتے ہیں. گیو ہم ٹائم، اسٹاپ کمپیئرنگ ہم. اور یہ بھی بات نہ کریں کہ وہ ہو گئے تو ان کے سامنے وہ بیٹھا ہے نا اندر ایک آدمی 10,000 رن لے کے پویلین میں، جو کوچ ہے ان کا. تو اسی لیے سپر اسٹار دائیں بائیں بھی ہیں. بابر اعظم کے پاس وقت ہے، اور وہ جو وہ ڈرائیو کرتے ہیں ایکسٹرا ویگنٹ، اس میں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا اس میچ میں کہ وہ ہر وقت نہیں لگتے ہیں. اینڈرسن اور براڈ کو جانتے ہیں اس ڈرائیو پہ کیچ کیسے کرایا جاتا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی. اور اب آتے ہیں پھر سے وادی کی جانب. بجبہڑا کی مختلف گراؤنڈز ہیں جی، ان کی ایک رپورٹ تیار کی ہے خورشید میر. جہاں بہت جگہ گئے ہیں. آئیے دیکھیں.
से के लिए इस साउथ कश्मीर के सेगमेंट में आज हम कुछ साउथ कश्मीर के मैदानों की आपको सैर कराएंगे और जितने भी इनके मसाइल है डेवलपमेंट के लिहाज से या बाकी और भी कोई मसला है वो आपको हम आज इंशाल्लाह दिखाएंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मेरे साथ कैमरामैन है वो डॉक्टर रियाज वीरी पहुंचे आकोरा क्रिकेट एसोसिएशन के जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी है, वो बताएंगे आकोरा क्रिकेट जो ग्राउंड है यहाँ पे इसमें किस किस्म के मसाइल दरपेश है। जी इरशाद साहब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस ग्राउंड के बारे में वाकिफ़ करना चाहता हूँ। ये जो क्रिकेट ग्राउंड अवामी स्टेडियम आकोरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। इसमें हमने बहुत से मेहनत की है, अपने जो प्राइवेट मनी है उसका हमने यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड की हालत क्या है, हमने किस तरीके से इस ग्राउंड को बना के रखा है। यहाँ पे हमने पेड़ कटवाए, कैसे करके पेड़ कटवाए और इस ग्राउंड को हमने ज़मीन का जो मुरब्बा है वो बढ़ा लिया है। हमने इस पर जो ये कंस्ट्रक्शन लगा के रखी है, लेकिन हम अभी भी कुछ चीज़ों से जूझ रहे हैं। क्या क्या मसला है दरपेश? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो बड़े बड़े टीम्स खेलने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस विकेट के लिए हमारा नहीं है। सबसे पहली मसला ये है। अच्छा। और उससे बड़ा मसला है कि यहाँ पे जो दो दरिया आते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों दरिया आते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हमें एक तरफ हमने फेंस करवा रखी है, वो भी हमने खुद करी है। और यहाँ पे जो 3 साइड यहाँ पे जो खाली आप देख रहे हैं, वहाँ पे हमें फेंस की प्रॉब्लम है। अच्छा। बाल जो हमारे जब बार जाती है, उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। क्रिकेट के अलावा हमारे पास यहाँ से थोड़ी सी लेवलिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, लेवलिंग है और हमारे 2 पावर लाइन की ज़रूरत है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो ज़रूरियात है पूरी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें खेल के मैदान से बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। हम आकोरा से लेके वापस आ रहे हैं यहाँ पे, जिसकी हम बात करेंगे अभी। इसका नाम है नीलंद्रुसु। जी हाँ, नीलंद्रुसु एक ऐसा मैदान है जिसको आप वहाँ से लेके, अगर आप नज़र वहाँ पे डालेंगे, वहाँ से लेके यहाँ दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे, नज़र वहाँ तक आपको नहीं जाएगी, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। क्या वजह रही इस नीलंद्रुस जैसे इतने बड़े मैदान को, जहाँ पे एक ऐसा वक्त हुआ करता था जहाँ पे एक साथ 40 से भी ज़्यादा टीम में खेलती थी। जब हम परवेज़ रसूल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात करते हैं, उन्होंने भी खेलना इसी ग्राउंड से शुरू किया और हम लोग भी इस पे खेलते थे। लेकिन वक्त अब गुजरता गया, अब लोग इसको कभी गोबर सुखाने के काम लाते हैं या कभी आप देखते हैं इस वक्त के माल मवेशी इसमें चराते हैं। तो दरअसल बात यह है कि इस नीलंद्रुस की जब हम बात करते हैं ना, तो ये अब सुकड़ता गया है। एक सनत से कि कुछ तरफ से इसमें एक कॉलेज अब बन गया, जो यहाँ पे लोगों की एक देराना डिमांड भी थी। अब कॉलेज को छोड़ के बाकी ये जो संसान पड़ा हुआ है, क्या वजह है कि लोग यहाँ पे अब खेलते नहीं हैं? यहाँ पे दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि जो बाकी इलाके हैं गांव में दूर दराज, वहाँ पे बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले। नीलंद्रुसु का जो हाल है वो बहुत ही बदहाल है। लेके अब हम आगे जा रहे हैं और एक गाँव में जिसको हम मोमन कहते हैं, मोमन रंजी। तो यहाँ पे भी एक मैदान है, खूबसूरत मैदान है, इसको भी हम दिखाएंगे। अभी इसका भी कुछ मसला है, ये इनसे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, जो यहाँ के इंचार्ज है। तो इस मैदान के हवाले से आप अपना नाम बताइए, पहले आप बताइए आपको क्या मसला है इसमें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लतीफ़ अहमद है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। जी। हमारा ये ग्राउंड जो है पिछले डेकेड्स से ये इसको इग्नोर में रखा गया है। अच्छा। क्योंकि आप देखिए ये इसकी सरकमफ्रेंस देखिए, ये लश ग्रीनरी से पूरा ब्लेस्ड है और पूरी तरह डेवलप भी है। लेकिन अब हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में लाई थी, लेकिन अभी तक बदकिस्मती से उन पे अमल नहीं हुआ है। कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिन पे आप बात करें? जैसे आप देखिए, हमारे पास मैट नहीं है खेलने के लिए, हमें मैट चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडिश चाहिए डिपार्टमेंट में। ये ग्राउंड पूरा खुला है तो यहाँ पर एनक्रोचमेंट इसका खतरा रहता है हमेशा। या गाड़ियाँ अंदर आ सकती है तो फिर से खराब हो सकती है। तो ये ग्राउंड जो है फिर से ये नाहवर हो जाता है, तो फिर खेलने में दिक्कत और क्या मसला है इसका? और है ड्रेसिंग रूम, हमारे पास एक ड्रेसिंग रूम भी होना चाहिए यहाँ पे। मुझे लग रहा है जहाँ तक इस ग्राउंड की बात है, मुझे लग रहा है ड्रेनेज का सिस्टम भी यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे होता है, ड्रेनेज का भी हमें मसला है, यहाँ पे ड्रेनेज भी होनी चाहिए सरकमफ्रेंस में। और अगर मैचिंग विकेट भी मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए कोई विकेट नहीं है हमारे पास। अगर प्रैक्टिस करने के लिए विकेट बन जाता है तो लड़के तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए, वो प्रैक्टिस से बन जाते हैं। बहुत हसनपुरा, ये भी एक आर्मी का एक इलाका है, यहाँ पे भी एक अच्छा खूबसूरत मैदान मौजूद है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे मैदान की हालत, इस वक्त पूरी तरीके से पानी यहाँ भर चुका है। इसमें भी बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे। इस साल अभी खेल सरगर्मियां रुकी हुई है। इसको रेलवे ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। आप भी देख सकते हैं, खूबसूरत टर्फ है इस मैदान की भी। इसके हवाले से जो इंचार्ज इस मैदान के है, जो अक्सर यहाँ पे टूर्नामेंट निकालते रहे और खेलते रहते हैं, वीरेन क्रिकेट एकेडमी के वाइस कैप्टन भी है सईद मंजूर साहब हमारे साथ है। मंजूर साहब, इस हवाले से आप बताइए कि क्या मसला दरपेश है? ग्राउंड है, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अंडर डेवलप्ड रहा है। थोड़ा बहुत इस पे ब्लॉक ने काम किया, जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत वॉलिंग हो चुकी है। अच्छा। लेकिन ये एक और पूरा साइड जो है, यहाँ से अगर आप वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से किसी भी तरह की वॉलिंग नहीं हुई है। अच्छा। ऐसे ही रख दिया है, तो इस वजह से वहाँ से पानी आके इस ग्राउंड में चला जाता है, और ये पानी आ जाने की वजह से यहाँ पे खेल की जो सरगर्मियाँ, चाहे यहाँ पे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या दूसरी कोई गेम हो, वो रुक जाती है।
तो अभी जो मतलब बेसिक जो हमारी नीड है वो यही है कि हमें यहाँ पे जो तमाशाई होते हैं उनके लिए हमें बैठने की जगह नहीं होती, जिनको हम सिटअप्स बोलते हैं जी, सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। दूसरा, खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल नहीं है। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो ये पानी घुस आया तो ये इस वजह से क्योंकि यहाँ पे डिच पड़ा हुआ है। तो अगर इसकी फिलिंग हो जाती, और इस साइड से भी अगर आप देखेंगे यहाँ से भी आपको नीचा दिखाई पड़ेगा, जैसे छोटे मोटे गड्ढे हैं जो प्रॉपरली मतलब जिनको फिल नहीं किया गया, तो इस वजह से यहाँ पे काफी सारी दुश्वारियां आती है। ऊपर से एक और इशू है जो लेवलिंग का है, क्योंकि लेवलिंग का मसला भी है। अगर आप जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लेवलिंग का मसला आपको नजर आएगा। वहाँ पे डिचेस भी बने हुए हैं जिनको हम गड्ढे बोलते हैं, और थोड़ा बहुत जमीन भी ऊपर आया हुआ है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ऊपर से टर्फ मतलब एक 3-4 साल हो गए इसको बनाए हुए, तो अभी ये टर्फ खराब हो चुकी है, और टर्फ की जो यहाँ पे दिक्कत है इस वजह से हम खेल को जो है आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। जी थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हसनपुरा की बात। अब हम आते हैं क्विज की जाने। जी हाँ, क्विज की जाने। पिछला क्विज जो था उसमें हमने दिखाया था कि बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट्समैन की एज लगाया, कैच पकड़ने, कीपर ने डाइव मारी है, और बॉलर हैं, पहले कीपर बताऊंगा, रॉडनी मार्श हैं, फर्स्ट लिस्ट में इयान चैपल हैं, बैट्समैन टॉनी ग्रेग हैं, और ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, और बॉलिंग गैरी गिलमोर कर रहे हैं। गैरी गिलमोर आपने सही पहचाना, बहुत सारे दोस्तों ने, मैं उन सब के नाम पढ़ूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आज के विनर कौन बन गए लॉर्ड्स के जरिए, कुर्रानंदाजी के जरिए। पहले उन 15 दोस्तों के नाम जिन्होंने सही जवाब दिए। आप हैं शबीर अहमद ऋषि लतपुरा से, वानी नसीर गुंड रहमान गांदरबल से, गुलाम कादिर शमनाग चाडोरा से, मुद्दसिर अहमद भट्ट आप बोटिंगो सोपोर से, माजिद रफ़ीक नेंगरू बदरू यारीपुरा कुलगाम, लायत अयूब रामनगरी शोपियान, रूफ अहमद डार पुरवारा चाडोरा, जाहिद नबी पिंगलना पुलवामा, अल जहा अशरफ कुलगाम, सज्जाद मीर यारीपुरा, शौकत अली ओहनगाम पुलवामा, वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, मसरत नाज काजीपुरा आप काजीपुरा बांडीपुरा से लिखते हैं, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग से, मसरत लोन से, आबिद शफी मालमनपुरा सोपोर से, खुर्शीद अहमद लोन तुर्कमांगाम शोपियान से, और आखिर पर हैं इश्तियाक वानी चिठे बांडी बांडीपुरा से। और लॉर्ड्स के जरिए, कुरानंदाजी के जरिए जो नाम लिखा है वो है शौकत अली ओहनगाम पुलवामा से। शौकत अली को इनाम बहुत बहुत मुबारक सलीम के एंटरप्राइजेस की जानिब से। अब आते हैं फिर से सवालात की जानिब। चंद सवालात मैं आपसे पूछूंगा। जुबैर गनाई ने सुगु हंदहामा से लिखा है कि बॉलर्स बॉल की शाइन के लिए आजकल सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं थूक के बदले? देखिए, एक बात है कि अगर आज सैनिटाइजर का है तो बाकी दिनों में वैसलीन लगाते, बाकी दिनों में ग्लिसरीन लगाते, कोई एक्सटर्नल चीज अलाउड नहीं है लगाना, चाहे वो सैनिटाइजर ही क्यों ना हो, बॉल को चमकाने के लिए या कुछ करने के लिए। इन्होंने समझा कि आजकल सैनिटाइजर का यूज पहले है। नहीं, गलत, पहले तो बॉल पे क्यों ना, बाहर की चीज तो लगा ही नहीं सकते आप। आजकल वो पसीना लगा रहे हैं, वो लगा सकते हैं, पहले भी लगाते थे प्लेयर, और इतनी ज्यादा वो सलाइवा लगाया भी नहीं जाता था कि हम समझेंगे हर एक लगाता था। कोई कोई खासकर स्पिनर मैंने बहुत से देखे ऐसे उंगली को करते थे ग्रिप के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन कुछ को आदत ही थी हर बॉल से पहले ऐसे जी, अब वो उनको आदत छोड़नी पड़ेगी। मुश्ताक लोन ने तुर्कमांगाम शोपियान से लिखा है, पाकिस्तान की टीम ने कैसे इंग्लैंड में इतना अच्छा खेला है? पाकिस्तान की टीम पहले भी इंग्लैंड में अच्छा खेलती है, इवन 70s में जब वो सीरीज हारे हैं तो जीत के दहाने से हारे हैं, चाहे इंतखाब आलम कैप्टन हो, चाहे आसिफ इकबाल कैप्टन हो उस पीरियड में, और उसके बाद जब 82 में इमरान खान आते हैं तो सीरीज जीतते हैं, फिर उसके बाद आगे सीरीज जीतते हैं, फिर मियादाद कैप्टन बनते हैं तो सीरीज जीतते हैं, वसीम अकरम सीरीज जीतते हैं एज कैप्टन वहाँ। तो इंग्लैंड में इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी चली है, इनके स्पिनर भी अच्छे चले हैं। पिछली कुछ सीरीज में यासिर शाह, अब्दुल कादिर ने अच्छी बॉलिंग की है, सकलैन ने, वकार ने और वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एक पीरियड में इमरान ने, सरफराज और आसिफ मसूद ने। एक बात यह है कि पाकिस्तान ने जब भी मैच इंग्लैंड में जीते हैं, नॉर्मली एक आध के बगैर वो अपनी बॉलिंग से जीते हैं। जी जी, सही है। तौसीफ शौकी दरवेश बाग पटन से लिखते हैं कि क्या पाकिस्तान इंग्लैंड में सीरीज जीत सकता है? टफ है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये थे हमारे आज के सवाल। हालांकि बहुत सारे सवाल अभी हैं, मौजूद हैं, क्या करेंगे उनको अगले प्रोग्राम्स में शामिल करेंगे।
اور اب آج کے پروگرام کا کوئز اور آپ کو یہ بتا دیں، آپ اگر صحیح جواب دیں گے پھر لارڈس کے ذریعے آپ کا نام نکلا تو سلیم کے انٹرپرائزز کی جانب سے آپ کو انعام ملے گا۔ دیکھیے آپ یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک فٹ بالر نے بائسیکل کک ماری ہے، اس فٹ بالر کا نام بتائیے آپ۔ یہ جو فٹ بالر بائسیکل کک مار رہے ہیں اس کا نام آپ بتائیے۔ اگلے جمعے تک یعنی فرائیڈے تک آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ جو اس وقت اسکرین پہ آ رہا ہے صحیح جواب بولیے گا، اپنا نام بھی لکھیے گا اور ہم وہ نام یہاں پر پھر پڑھیں گے۔ جی بالکل پڑھیں گے۔ اور دیکھیے آپ اس پروگرام کے بارے میں اگر آپ کو ہم نے بارہا کہا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کور کرنا چاہتے ہیں ہمیں انفارم کریے اور پھر ہم بتائیں گے کرنا کیا ہے اور کس سٹینڈرڈ کی کوریج چاہیے ہمیں اور کتنی چاہیے، تو آپ وہ ایکٹیویٹی کور کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر میچ نہیں، رینڈم کوئی فائنل ہو، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو، کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایشو ہو، تو آپ ڈیفینیٹلی اس میں کنٹریبیوٹر بھی بن سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اس وقت لیتے ہیں اس اسپورٹس میگزین سے اجازت۔ خدا حافظ۔